and it is liberating itself by imposing huge high levels of tariff on all the countries, particularly on the developing countries. My paper is on trade and tariff wars today, the world moving towards recession. This is a very strange logic in the US statements. यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि and the paper has written, in the paper it has been written, Trump has hypocritically claimed, क्या क्लेम किया है कि for decades our country, that is the US, has been looted. So it is not the United States which has been looting the world, but it is United States which has been looted, pillaged, raped, plundered by nations near and far, both friend and foe alike. तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने को एक विक्टिम बना के पेश कर रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि for last several decades, for the entire period of the post-Second World War, यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया के देशों को लूट कर अपने देश में वेल्थ जमा किया, गोल्ड जमा किया, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स जमा किए, and it was a total domination for the United States over the world economy. It has to be understood that United States has used every weapon of economics as a weapon to browbeat and exploit every other country, including the European Union countries. ये जो अभी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रम्प कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है कि लगातार हम इंपोर्ट करते रहे हैं एंड आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल फॉर अस. Actually, this is a false statement. The United States has deliberately allowed the balance of trade to be negative in its favor, क्योंकि इससे इसको बहुत सारे फायदे हैं. फायदे ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसको बनानी नहीं पड़ती. फायदे ये हैं कि इसको ये डॉलर का इस्तेमाल इसने दूसरे कंट्रीज़ और वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करने के लिए किया है, और इसलिए चाहे जितना भी बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो, फाइनेंशियली यूएस हैज़ ऑलवेज बीन इन ए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल सिचुएशन. वो इस बात को छिपा रहा है कि इस बैलेंस ऑफ ट्रेड का इस्तेमाल उसने ईयू को दबाने के लिए किया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को दबाने के लिए किया है. डॉलर को उसने दूसरे कंट्रीज़ में इकट्ठा होने दिया डिलिबरेटली. इट इज़ नॉट एज इफ यूएस वाज अनअवेयर. और फिर उस डॉलर का इस्तेमाल उन कंट्रीज़ के इकोनॉमी को डोमिनेट करने के लिए किया. It is not necessary for a country like the United States for dollars to remain in that country, most of the dollars to remain in the US. If it has certain amount of dollars in various countries, the United States can use those
deposits of dollars to as a lever, as a weapon to influence the economy of that country, as it is happening today in our country also. There is a huge surplus of dollars in our country, which is being used as a weapon by the United States, and this has to be understood. This is one of the things that we have to understand. जहाँ तक ट्रेड एंड टैरिफ का सवाल है, we have to understand, we have to go back in a little back in history, not very old history, but a recent history, and that is in my paper I have tried to talk about GATT and WTO. How GATT came into being? GATT means General Agreement on Trade and Tariffs. ये उसका नाम है, General Agreement on Trade and Tariffs. It was initiated by United States, and it was initiated by the United States at a time when already United States had negative balance of trade. अब उसका इस्तेमाल देखिए कैसे करना है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, उसने एग्रीमेंट करवाया सब मेजर कंट्रीज़ को इकट्ठा करके कि भाई दुनिया के दूसरे देशों को अपने बैरियर्स को नीचे करना पड़ेगा। ट्रेड टैरिफ्स हैव टू बी लोअर्ड, particularly countries like India, China, Asian countries, African countries, they must lower the trade tariffs so that United States commodities and intellectual property can enter into their economies. This what happened in 80s and 90s. We remember that we may be reminded that the General Agreement on Trade and Tariff became WTO in 1994. Yes. And that GATT was also known as, it was started by Dunkel as Dunkel proposals. So Dunkel proposals was where the proposals to lower the trade and tariff barriers all over the world, particularly for the agricultural products, for the manufactured products, and intellectual property rights. डेवलपिंग कंट्रीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को कम करने के लिए, ताकि अमेरिकन इंटेलेक्चुअल पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल राइट्स आसानी से डेवलपिंग कंट्रीज में ना जाए। ये था अमेरिका का पूरा स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स। ये था कि वो बजट्स को, दुनिया के कंट्रीज़ के बजट्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। किया उसने, बहुत सारे देशों के इकोनॉमीज़ को बर्बाद कर दिया। एक समय हमारे भी देश में था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल लो चला गया था, हमें बड़े पैमाने पर ख़रीदना पड़ रहा था, डॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था दुनिया से, और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया यूनाइटेड स्टेट्स ने एज ए लीवर, एज ए वेपन टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज, particularly of the developing countries, and to bring those economies under the influence of the US economy, which they gave the name as GATT. GATT was institutional, and there was a lot of opposition to that. They talked about globalization, privatization, जिसको कहते हैं LPG, liberalization, privatization and globalization. That was the slogan given by the United States. Today it is trying to come out of it. Yes, yes. But it was advanced by United States way back in 90s. Washington consensus. Washington consensus था। तो ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स का शुरू किया हुआ है। ये अलग बात है कि अब उसके ऊपर पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है,
लेकिन ये काम शुरू किया यूनाइटेड स्टेट्स ने. सो दिस अमेरिकन हिपोक्रेसी इज thoroughly exposed today through the measures of taken by Trump. So उन्होंने WTO बनाया. अब WTO जब बना तो क्या हुआ, हमारे भी देश में इसको लेकर बड़ी बहस चली कि हमको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेफ्ट राइट सेंटर पार्टीज के बीच में बहस चली, इकोनॉमिक्स के बीच में कि अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे जो ग्लोबलाइजेशन से मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे. तो अल्टीमेटली ये तय किया गया कि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज में ये तय किया कि चलो हम WTO ज्वाइन करेंगे, बट बी केयरफुल, वी विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दी, वी विल फाइट विद इन दी WTO फॉर lowering the tariff in a way which is universal, applicable to all the countries, including United States. United States अपने यहाँ टैरिफ नहीं कम कर रहा है, दूसरों के यहाँ कम करवा रहा था सब उस ज़माने में. इंडिया को फोर्स किया उसने, अफ्रीकन कंट्रीज़ को फोर्स किया, बहुत सारे कंट्रीज़ को फोर्स किया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को फोर्स किया. सो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड हाउ यूनाइटेड स्टेट्स यूजेस various economic levers in order to gain the leverage in the international market, which it called globalization. Global village, global economy, global this, global that, everything is global. That means US domination. There is another matter that world market is becoming internationalized, and it is a welcome thing. But in the international market, everybody has the equal right. If a weak country is there, it has to be helped. If there is a strong country, it is the responsibility of the strong country to help the weaker countries and to allow the commodities from weaker countries to be sold in international market. So globalization or internationalization has its own positive things. Now, interesting thing is that after joining the WTO, and most of the countries joined, I think today more than 200 countries are there in the WTO. चाइना ने कहा कि हाँ हम तो ज्वाइन करने को, इंडिया हेजिटेंट था. चाइना ने कहा हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो लीडरशिप भी लेने को तैयार हैं WTO का, ये भी कहा. तो इंडिया ने भी ज्वाइन किया, सब ने ज्वाइन किया. विद इन दी WTO देयर स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट. यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU on the one side and the developing countries on the other side. North-South conflict leading to a North-South dialogue. This went on for some time. Then there started conflict between US and EU and Japan. So contradictions started growing instead of lessening because of the US policy. It tried to use WTO against all these countries, particularly the developing. But developing countries hit back. Their rate of growth was higher and is higher, continues to be higher than Western countries, particularly than the United States. This has to be remembered. So Shanghai Cooperation Council came into being. That thing, BRICS came into being. BRICS, SARC came into being. BIMSTEC. So BRICS has become a big organization today. Over, I think, 30 countries today. It began as 4 countries and 5 countries organization. It became a very strong organization which Americans did not expect. It became a counter. So अमेरिका ने देखा कि ये तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो WTO का जो नतीजा है वो उल्टा पड़ने लगा. उसका जो डोमिनेशन है वो कमज़ोर पड़ने लगा. इस बीच में चाइना सेकेंड इकोनॉमी बन गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट यूज्ड cheap labor, it used technology, it used assembling various things, electronics and all that. तो चाइना बहुत बड़ा पावर बन गया, second only to
यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना ने WTO को अपने हक में सही गलत दोनों तरीके से इस्तेमाल किया। चाइना हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट्स आफ्टर US, हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ डॉलर्स, yes. and it is using those dollars because it is a strong economy against United States. So the point is that today WTO and GATT and globalization has started hitting United States back. It is a circle, full circle since 1994. In the last 30-40 years, the circle is complete. And now the United States under Trump wants to come out of it because it is unable to fight those countries in the old way. So it is trying to use tariffs and trade. So Trump is a representative of this kind of monopoly finance capital. Strangely, he is also the representative of big industrial capital. जो इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उसकी आवाज़ वो उठाता है। इसका ये मतलब नहीं कि फाइनेंशियल हाउसेस की आवाज़ बंद कर दी है उसने उठाना। दोनों को लेके इसके जो इलेक्टोरल अपने एम्स हैं उनको लेकर के वो चल रहा है। तो इसके पास एक ही ऑल्टरनेटिव बचा है, वो है टैरिफ्स का इस्तेमाल करना। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो पेपर्स में आर्टिकल्स एंड न्यूज़ आ रहे हैं, लगभग हर कोई इस बात पर सहमत हो रहे हैं ये किसी के फायदे के लिए नहीं। ऑल दी डेली न्यूज़ पेपर्स एंड अदर्स, दे आर मोर और लेस of the opinion that this is going to hit the US economy very hard. इसका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स और बहुत सारी चीज़ें जो US इंडस्ट्री को चलाती हैं, चाइनीज़ गुड्स चलाती हैं, वो बंद हो जाएगी। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड अदर थिंग्स इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी कॉस्टली इन यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ों के दाम कॉमन अमेरिकन्स के लिए बढ़ने जा रहे हैं। अब आप 25% से लेकर तो 50% तक के टैरिफ लगाएंगे तो उन चीज़ों के दाम यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ जाएंगे। तो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी हिट वेरी हार्ड। ऑलरेडी द शेयर मार्केट्स आर डाउन, इट हैज़ कम इन टू स्पिन। बॉम्बे का शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया सडनली, एंड द जायंट कंपनीज आर लूजिंग बाय अप टू 10% ऑफ देयर शेयर मार्केट्स। सो दिस इज नथिंग बट रिसेशन। रिसेशन पहले से चला आ रहा है, रिसेशन 2008 से चला आ रहा है, और 2008 से आगे बढ़ते पीछे हटते अमेरिका आज इस पोजीशन में पहुंच गया है कि वो अभी इस रिसेशन को रोक नहीं सकता है। टैरिफ भी इसको अब इस कंडीशन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि टैरिफ लगाएंगे आप तो ये कंट्रीज काउंटर टैरिफ लगाएंगे। China has imposed. China has already imposed 37%. Vietnam is going to impose. EU is going to impose. Latin American countries are going to impose. इंडिया अभी तक चुप बैठा है, लेकिन इंडिया को भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने रास्ता नहीं है। कर रहा है धीरे धीरे, इसको भी करना पड़ रहा है। तो जिस वेपन का इस्तेमाल उसने दूसरे वर्ल्ड इकोनॉमी के खिलाफ किया था, वही वेपन आज उसके खिलाफ जा रहा है। दिस इज द रिजल्ट, दिस ट्रम्प पॉलिसी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस आई थिंक। सो ट्रम्प इज नॉट जस्ट अ पर्सन, an individual, he is the product of the growing crisis in US market and world market. That is what I think. US market and world market में जो तेजी से बढ़ता हुआ जो क्राइसिस है, उसका रिजल्ट ट्रम्प की पॉलिसी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत लंबे समय के बाद, वियतनाम वार के बाद,
एक तरह से पहली बार कहा जाए कि डायरेक्ट कॉलोनियल टेंडेंसीज बहुत रफ तरीके से शो करने लगा। अभी तक इस बीच में नहीं किया था, लेकिन सडनली ट्रम्प ही सही, आइसलैंड हमारा है, फिर वो क्या है, ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारा है, ऑल दीज आर प्रोविंसेस ऑफ कनाडा को तो उसने बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया। पनामा कैनाल तो पनामा कैनाल ने तो बहुत अच्छे से जवाब दिया। कोलंबिया ने जवाब दिया। इंडिया में तो हाथ पैर बांध करके बिजनेस लाएगा। कोलंबिया ने कहा कि वापस जाओ, हम नहीं लेंगे, हमारे प्लेन में बिना शटल्स के ये लोग आएंगे। तो अमेरिकन प्लेन को उसने वापस कर दिया। तो धक्का तो इसको बहुत पहुंचा। तो ये चाहता है कि बुली करके एज ए स्ट्रॉन्ग मैन इन कंट्रीज़ को जो जिनको कमज़ोर समझता है उसको वो क्रश कर देगा। और डेनमार्क ने जवाब दे दिया बहुत शार्पली, कोई उसको रिसीव करने नहीं आया। वो वाइस प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ गए थे, जेडी बेंस एंड ऊषा बेंस, और उनके जितने सोशल फंक्शन थे वो कैंसिल हो गए। तो वो अमेरिकन मिलिट्री बेस में ही रह गए, वहाँ पर बैठे हुए। देन कनाडा इज रिस्पॉन्डिंग। तो ये एक कॉलोनियल एटीट्यूड इन न्यू फॉर्म, न्यू कॉलोनियल, हम ये कर देंगे, हम तुमको दबा देंगे, हम फौज उतार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो ये समझता है कि यूनाइटेड स्टेट्स समझता है कि ऐसा करने से दुनिया के देश दब जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि दुनिया के देश इतने आसानी से नहीं दब सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली आज दे आर वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू say 70s, 80s, 90s, like that. So it is not easy today to crush or suppress the major countries of developing world. क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम्स इमर्ज कर रहे हैं। सो डीपर मीनिंग अगर इसका लिया जाए तो आई थिंक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है, एआई एल्गोरिदम, पिछले इस साल, खास तौर पर इस साल के 3-4 महीनों में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से डीपन हुआ है। इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का भी हाथ है इसमें। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आई थिंक, to increase the contradictions. How to use that technology? The world capitalist economy is finding it very difficult to adjust with that, with the effects of technology, and as a result, the balance between manufacture, production, trade, distribution, all this balance, national, international, balance गड़बड़ा गया लगता है। बैलेंस गड़बड़ाने से इट इज़ अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का डीपन होना, डीपनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ एआई, स्प्रेड ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम्स लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक ने तो हिला दिया था वर्ल्ड इकोनॉमी को, पूरा बुरी तरह से जोर दिया था। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डीपनिंग ऑफ यूएस क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड टू द डीपनिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इट इज ऑल्सो a process of adjustment and readjustment in which US is finding it very difficult to adjust. This is also resulting in wars in various places. So it is a present phase of imperialism. Certain features are there we will need to analyze, study. The present phase of imperialism is quite different from previous phases. Recession शुरू हो गया है, ट्रम्प के आने के पहले से ही शुरू हो गया था। ट्रम्प के आने के बाद ये और भी ज़्यादा गहराई से चल रहा है। रिसेशन का मतलब है कि
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जगह नहीं है। रिसेशन का मतलब है कि कंज्यूमर गुड्स का दाम बेइंतहा बढ़ रहा है, बढ़ेगा और आगे। रिसेशन का मतलब ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी को फर्दर डोमिनेट करने में असमर्थ पा रही है अपने को, और इसलिए कुल मिलाकर के एक डाउनवर्ड ट्रेंड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन वेरी रैपिडली। सो इट हैज़ इट्स ओन सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, ऑल काइंड्स ऑफ इफेक्ट on the world, the whole world. This is a very serious as well as interesting development. I think if the developing countries and other countries, they, like EU, they take up a well thought out, balanced strategy if they develop, they can isolate the US government and prevent its mad rush to dominate the other countries, both economically as well as politically. That much, these are the points. This paper was written in a very great hurry. So जो भी मेरे दिमाग में बातें आई वो मैंने इसमें लिख डाली और प्रेजेंट किया है बोलते समय. But this is a very interesting development. We have a lot of things to discuss and develop. I am to study the present phase of world economy. Coming days will be very interesting in this. So that's all I can say for the